اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الزمر کی آیہ مبارکہ 53 اور 54 باترجمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ خالق و مالک نے ان آیات میں 3-4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز، وہ لوگ جو گناہ کر کر کے اللہ کے نافرمان ہو چکے ہیں، اللہ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تیسری بات یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اور مہلت ہے، چھوٹ ہے، ڈھیل ہے، آزادی اور اختیار ہے۔ اللہ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ آج سے کچھ ایام پہلے، 1 مہینہ قبل، چھوٹے اور بڑے کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اب چھوٹا یا بڑا اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، بخششیں، فراوانیاں لے کر آیا تھا، اور یہی چیزیں بکھیرتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے یہ اب ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کچھ لوگ اس کے مصداق ٹھہرے ہیں، اور کچھ لوگ سستی میں پڑے رہے، کاہلی میں پڑے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں لگے رہے۔ اب بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے ان گناہ گاروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ ان گناہ گاروں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، میں اپنی رحمت سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جنگی قیدیوں میں ایک خاتون ہے، اس کا بچہ گم ہو چکا ہے۔ اس نے ایک بچے کو دیکھا تو اسے اٹھا کر بوسہ دیا اور اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا یہ ماں پسند کرے گی کہ اس کے بیٹے کو، اس کے بچے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تو ایک ماں کی ممتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی، اللہ کی رحمت اس ماں سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے جہنم میں چلے جائیں۔
اور اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی رحمت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بنی اسرائیل کی پہلی قوموں میں سے ایک خاتون جو بدکارہ خاتون تھی، دوپٹے کے ساتھ اس نے اپنا جوتا باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر ایک کتے کو پلا دیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس بدکارہ خاتون کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا ذکر کیا جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ اور کیسے داخل ہو رہا ہے؟ اللہ مجھے جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے، اللہ جہنم کے باہر بٹھا دے، اللہ فلاں درخت نظر آ رہا ہے اس کے سائے میں بٹھا دے، اللہ جنت کے دروازے پہ بٹھا دے۔ اللہ نے بالآخر اس بندے کو اپنی جنت میں داخل ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا زمین و آسمان کے خلا جتنی جنت کا تجھے مالک بنا رہا ہوں، یہ جنت میں آخری شخص داخل ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے؟ اللہ کی رحمت سے داخل ہو رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم میرے دروازے پہ آ جاؤ، دستک دے دو، مجھے پکار لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے، میری برکات اتنی زیادہ ہیں کہ یغفر الذنوب جمیعا، تم سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی آئے تو صحیح میرے دروازے پہ۔ اللہ تو آسمان دنیا پہ آ کر رات کی تاریکی میں، تنہائی میں مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے حل من مستغفرن، اے گناہوں سے تنگ آئے ہوئے انسان، زندگی گناہوں کی دلدل میں گزارنے والے انسان، اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسان، میں آسمان دنیا پہ آ کے تجھے پکار رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، حل من مستغفرن، کوئی آئے تو صحیح میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تو پکار پکار کے کہتا ہے یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سب کے گناہ معاف کر دوں گا، میرے در پہ آ کے تو دیکھو۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دیکھو، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ ذوالکفل کے پاس رات کی تاریکی میں اس کے خاندان میں سے ایک خاتون آئی اور معاہدہ طے ہو چکا ہے کہ اتنا وقت میرے ساتھ گزارے گی تو یہ پیسے تجھے مل جائیں گے۔ خاتون جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج مجبور ہو کر، مقہور ہو کر، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ ہو چکی ہے، اور جسم پہ کپ کپی طاری ہے، تھر تھر جسم کانپ رہا ہے۔ ذوالکفل کہتا ہے دروازے بند ہیں، میرے تیرے علاوہ تیسرا کوئی نہیں، کس کا ڈر اور خوف ہے؟ وہ خاتون بولی یہاں کمرے میں میں اور تو ہوں، لیکن ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تو کہتا ہے کس بات کا ڈر ہے؟ مجھے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا تو ایک گناہ کرنے لگی ہے تو تیری یہ کیفیت ہے، ذوالکفل تو نے تو ساری زندگی برباد کر دی۔ خاتون سے کہا جاؤ، چلی جاؤ، دروازہ بند کیا۔
अपना सर सजदे में रख दिया, रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांग ली। अल्लाह का नाफरमान और बागी है, अल्लाह का दुश्मन है, गुनाहों की दलदल में जिंदगी गुजारने वाला है, दिल पे दरवाजे पे दस्तक हो चुकी है कि ज़ुल्किफ़ल वो एक गुनाह करने के लिए तैयार नहीं है, तूने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सर सजदे में रखा, सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हुआ, अल्लाह ने सजदे में ही उसकी रूह कब्ज़ कर ली। लोग कहते हैं ये बदमाश आदमी है, आज ये गली में नहीं निकला, ये तो चौकों चौराहों पे खड़ा होकर इज्जतों को तार तार करने वाला, पामाल करने वाला, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने वाला है, क्या वजह है नहीं निकला? दरवाजा तोड़ा गया, देखते हैं कि ये सजदे की हालत में फौत हो चुका है, अल्लाह की कुदरत से दरवाजे पे लिख चुका है, कद गफरल्लाहुल किफला। लोगों, तुम्हारी नजर में ये ज़ुल्किफ़ल बुरा इंसान है, तुम्हारी नजर में ये शख्स गंदा है, लेकिन आज की रात इसने अल्लाह से सुलह कर ली है, आज की रात इसने अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांग ली है, आज ये अल्लाह से राजी हो चुका है। सजदे की हालत में जिस्म से रूह परवाज कर गई है। कद गफरल्लाहुल किफला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये मेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ, मैं रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दरवाजे खोल कर ऐलान कर रहा हूं कि ज़ुल्किफ़ल को माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया है। यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि हम हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफी मांगे तो सही, अल्लाह हम सब के सारे गुनाह माफ करने वाला है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वे से पीछे रह गई, मुकाता हो चुका है, कोई काब बिन मालिक से मुलाकात ना करे, कोई काब बिन मालिक के सलाम का जवाब ना दे। अपने चचा के बाग की दीवार पे बैठे हैं, अस्सलामु अलैकुम कहा, चचा के बेटों ने जवाब ना दिया। कहते हैं ऐ मेरे चचा के बेटो, बेगाने तो बेगाने हैं, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मना किया है, हम तेरे सलाम का जवाब क्यों दें? कुछ दिन गुजरे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया काब से कहो अपनी बीवी से भी दूर हो जाए, अपनी बीवी से भी अलहदगी इख्तियार कर ले। 40 दिन गुजर चुके हैं, काब अपने घर में मौजूद, बीवी बच्चों से मुनक़ते, सोशल जो उनका राबता है मुनक़ते, सर सजदे में रखा हुआ है, ग़ज़वे से पीछे रहने की मुआफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ने आसमान से तौबा कबूल करके ऐलान कर दिया कि काब बिन मालिक की तौबा कबूल कर ली गई है। आने वाला ऐलान करता हुआ आता है और कहता है या काब बिन मालिक अबशिर, या काब बिन मालिक अबशिर, ए काब बिन मालिक तुझे मुबारक हो, तुझे खुशखबरी हो, तू खुश हो जा, तूने अपने रब से सुलह की है, अपने रब से मुआफी मांगी है, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है, ग़ज़वे में पीछे रहने वाला गुनाह अल्लाह ने तेरा मुआफ कर दिया है। काब बिन मालिक को कौन सी चीज है जो तौबा पर बार बार आमादा कर रही है? काब बिन मालिक को कौन सी चीज है जो बार बार सजदे में झुकने पर मजबूर कर रही है? उनका ईमान और अकीदा ये है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा, ग़ज़वे में पीछे रहा हूं, अल्लाह मेरे लिए बरात नाजिल कर देगा। अल्लाह ने तौबा कबूल की। काब बिन मालिक रसूलुल्लाह के पास आए, अल्लाह के रसूल इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के पैगंबर मुझसे जुर्म सरजद हो गया, मैं बदकारी कर बैठा, मुझसे जिना हो गया, मेरे ऊपर हद लगा दे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जाओ माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु को रजम कर दो।
रजम किया गया। माइज़ असलमी के जिस्म से खून के फव्वारे फूटे, चंद कतरे एक शख्स के कपड़ों पर पड़ गए। उसने कहा नऊज़ बिल्लाह, ये गंदा खून मेरे कपड़ों को आलूदा कर गया। अल्लाह के रसूल को ये बात पता चली। आपने फरमाया माइज़ असलमी की तौबा एक तरफ, सारे मदीना के अफराद की तौबा एक तरफ, तुम सब मिलके तौबा इस्तिगफार करो और माइज़ असलमी अकेले की तौबा एक पलड़े में रख दो। अल्लाह ने माइज़ असलमी की तौबा तुम्हारी तौबा पे वजनी और भारी कर दी है। इसे कहते हैं तौबा, इसे कहते हैं व अनीबू इला रब्बिकुम, लोगों अपने रब की तरफ पलट आओ। गुनाह कर रहे हो तो मायूस मत हो, अपने रब के पास आ जाओ। मस्जिद में आके सर झुका लो, घर में रात की तारीकी में नमाज पढ़ लो, अपने रब को राजी करने के लिए मेहनत कर लो। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करूंगा और जमीआ सारे के सारे गुनाह मुआफ करूंगा। तौबा करने वाला तौबा कर रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइली की तौबा का जिक्र किया। 99 कत्ल किए हैं, 99 कत्ल किए। एक आबिद के पास, जाहिद के पास चला गया, 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा 99 कत्ल करके आया है और कहता है तौबा कबूल हो, तेरी तौबा कबूल नहीं होती। उसने उसे भी कत्ल किया, 100 की तादाद पूरी कर दी। आगे चला, उसकी मुलाकात एक आलिम दीन से हुई, दीन के तालिबे इल्म से हुई। कहता है 100 का कातिल हूं, अल्लाह से अपने इस गुनाह की मुआफी मांगना चाहता हूं, अल्लाह मुआफ कर देगा? कहा हाँ, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करेगा। इन तलिक इला अर्ज़ कज़ा व कज़ा वहुम फीहा उनासुन यअबुदून अल्लाह वहदा वला युशरिकून बिही शैआ। फुला शहर चला जा, फुला आबादी और इलाके में चला जा, वहां ऐसे लोग आबाद हैं यअबुदून अल्लाह वहदा वला युशरिकून बिही शैआ, जो मुवाहिद हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वो चला, रास्ते में फौत हो गया। अल्लाह की रहमत पे, अल्लाह की मगफरत और बख्शिश पे पुख्ता यकीन है, एतिमाद है, सच्चे दिल से अल्लाह की रहमत के साथ निकल चुका है, रास्ते में फौत हो गया। अल्लाह ने अपनी रहमत के साथ इस बंदे को अपनी जन्नत में दाखिल कर दिया। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ऐ अल्लाह के बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, आ जाओ अल्लाह के दर पर, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा। तौबा करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक फल खा लिया है, फल खा लिया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, जन्नती लिबास उतार दिया, जन्नती नेमतें खत्म, जमीन पे भेज दिया। अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये कौन सी गलती की कि सारी नेमतें छिन गई। कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह कहते हैं फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौबा और इस्तिगफार के कलिमात सिखा दिए और कहा आदम इन अल्फाज से अपनी इस गलती, अपनी इस खता की मुआफ़ी मांग लो, अल्लाह मुआफ़ कर देगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मुझसे जुल्म हो गया, मुझसे गलती खता भूल हो गई, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, अगर तूने मुआफ़ ना किया मैं तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ने फिर क्या किया? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर इलाका छोड़कर किश्ती में सवार होकर निकल पड़े हैं, भंवर में फंस गई, मछली के पेट में चले गए। वहां जाकर क्या कहते हैं?
वहां जाकर अल्लाह से दुआ करते हैं, कहते हैं ए अल्लाह मुझसे भूल और खता हो गई है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, तू पाक है, मैं भूल गया, मुझसे खता हो गई, तू पाक है, अगर तूने मुझे मुआफ न किया तो मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से निकालकर बाहर फेंक दिया। आज हम भी गुनाह तो करते हैं, रमज़ान का पूरा महीना हमने ऐसे ही गुजार दिया है। अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे बंदो, नाफरमानी में महीना गुजार दिया है, क्यों मायूस होते हो, तौबा वाली तो ऑप्शन मौजूद है, आ जाओ तौबा कर लो, मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करूंगा। लेकिन तौबा के साथ जो बात तुम्हारे लिए लाजिम है वो ये है, वह अस्लिमू लहू मिन कब्ल, तौबा करनी है ना तो तौबा करने के बाद फिर गुनाह नहीं करना, वह अस्लिमू, अल्लाह का फर्मा बरदार बन के गुजारना। यह नहीं कि तौबा की, गुनाहों की माफ़ी मिल गई, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा की, फिर गुनाह कर लिया। अल्लाह कहते हैं ना, तौबा करनी है तो वह अस्लिमू लहू मिन कब्ल, फिर अजाब नाजिल होने से पहले पहले तुम्हें अल्लाह का फर्मा बरदार बनना पड़ेगा, अल्लाह की इताअत करनी पड़ेगी। तौबा करनी है तो मशरूत तौबा है कि तौबा के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह के पैगंबर जो गुनाहों से पाक और मुबर्रा है, जिनसे कभी जिंदगी में गुनाह नहीं हुआ, कभी ख्याल तक नहीं आया, अल्लाह के पैगंबर तो दिन में 70-70 दफा और 100-100 दफा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मुआफी मांगा करते थे। मैं और आप किस बात की मूली हैं। अल्लाह के पैगंबर जो अंबिया के सरदार हैं, जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे, वो ये बात कहते हैं कि मैं भी अल्लाह की जन्नत में अल्लाह की रहमत से दाखिल होऊंगा, और हम हैं कि जिनके दामन गुनाहों से आलूदा और सियाह हैं, और हम ये दावे से कहते हैं कि हम जन्नत में सबसे आगे चले जाएंगे। हजरात अंबिया की जिंदगियां हमारे सामने, हजरात सहाबा की जिंदगियां हमारे सामने, कि जिन्हें अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारतें दी। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये 10 सहाबा जन्नत में चले जाएंगे। और हाल क्या है, उस्मान गनी रोते हैं, दाढ़ी तर हो जाती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खानों का दस्तरखान है और रंग रंग के खाने पड़े हुए हैं। बेटा पूछता है बात से, वालिद साहेब अब्दुर्रहमान बिन औफ आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। कहा बेटा एक वक्त था जब तेरे बाप के पास पहनने के लिए लिबास न था, तेरा बाप हिजरत करके आया, अंसार ने अपने घरों के मुंह खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, खजानों के मुंह खोल दिए। मैंने एक बात कही, मुझे मदीने के बाजार का रास्ता बता दो, कुछ ना था। आज इतनी नेमतें हैं कि दस्तरखान पे नेमतें शुमार नहीं होती। मैं डर इस बात से रहा हूं कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पकड़ ना ले, अल्लाह मुझसे नेमतों का सवाल न कर ले। वो सहाबा जो कदम कदम पे अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले, रो रो कर जिंदगियां गुजारते हैं। पूरा रमजान गुजर चुका है, मैं और आप अपने गुनाहों पे नादिम नहीं हुए। मैं और आप कभी तन्हाई में अल्लाह से रो के अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाले तो नहीं बने। आज हमने रात की तारीकी सो के गुजार दी, दिन का उजाला हमने खेल कूद में गुजार दिया। रमजान आया था, बंदे अपने रब से सुलह कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, हमने इसे ऐसे ही जाया कर दिया। अल्लाह कहते हैं ना परेशान हूं, क्यों परेशान होते हो मेरे बंदो, क्यों नादम होते हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, परेशान ना हूं, मेरी रहमत बड़ी वसी है। रहमत तो वसी है, कोई रहमत के दामन में आए तो सही। रहमत के दामन में कैसे आएगा। अल्लाह कहते हैं तौबा कर, यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तेरे सारे गुनाह मुआफ़ कर दूंगा। और तौबा भी ऐसी कर कि अस्लिमू लहू, तौबा करने के बाद तू अल्लाह का फर्मा बरदार बन के जिंदगी गुजारेगा।
تو اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دی ہے، ایام باقی ہیں، اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، سانسیں باقی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آجو توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ تمہارے رمضان کی عبادات قبول کر لے گا، تمہیں اپنا قرب عطا کر دے گا، تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ تمہارے کرنے کا کام ایک ہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور اللہ کی رحمت پہ پختہ ایمان اور یقین رکھو، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔